Hello students, today we will solve some numericals of chapter elasticity. Now question is which is more elastic rubber or steel? Explain. इस क्वेश्चन में पूछा है रबर और स्टील में से कौन सा मोर इलास्टिक है। तो हमने ये मान लिया है कि हमारे पास रबर और स्टील के क्या है वायर है। वी हैव टू वायर्स रबर और स्टील विच हैव same cross sectional area and same length. The Young's modulus of the rubber is yr and the Young's modulus of steel is ys, and the delta r is the extension in rubber and delta ls is the extension in steel wire. तो प्रैक्टिकली जब हम देखते हैं कि हमारे पास सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम लेंथ के हमारे पास स्टील और रबर के वायर हों और दोनों पर हम सेम वेट हैंग करें, तो जो आपकी रबर है उस रबर की लेंथ आपकी ज़्यादा इंक्रीज होगी और स्टील की कम होगी। तो जो आपका एक्सटेंशन होगा रबर में वो आपका मोर देन होगा स्टील से। सो दैट फॉर द रबर वाई आर इक्वल टू एफ एल अपॉन ए इंटू डेल्टा एल आर. For the steel, ys equal to fl upon a into delta ls. Now divide equation second by equation first. So that ys upon yr is equal to f into l upon a into delta ls upon fl upon a into delta lr. ए से ए आपका कैंसिल हो जाएगा, एफ एल से आपका एफ एल कैंसिल हो जाएगा. So that ys upon yr equal to delta lr upon delta ls, because delta lr is greater than to the delta ls, so that ys is greater than yr. Therefore steel is more elastic than rubber. Now next question is calculate the percentage increase in length of a wire of diameter 2.5 millimeter stretched by a force of 100 kg weight, and y is equal to 12.5 into 10 to the power 11 dyne per centimeter square. In this question given the diameter of the wire is 2.5 millimeter. Now we are calculate the radius of the wire. So the radius of the wire is the half of the diameter. So the r equal to d upon 2 equal to 2 upon 5 upon 2 equal to 1.25 millimeter. Now convert millimeter into centimeter. So that divide the 1.25 by 10. So that 1.25 mm is equal to 0.125 centimeter. And given f equal to 100 kg weight, तो 1 kg वेट इक्वल टू होता है आपका 9.8 न्यूटन, और 1 न्यूटन में आपके 10 टू द पावर 5 डाइन होते हैं. तो f इक्वल टू 100 इंटू 9.8 न्यूटन हो जाएंगे. न्यूटन को हम क्या डाइन में कन्वर्ट कर लेंगे. तो f इक्वल टू 100 इंटू 9.8 इंटू 10 टू द पावर 5 डाइन, या फिर f इक्वल टू 9.8 इंटू 10 टू द पावर 7 डाइन. सो दैट y is given y equal to 12.5 into 10 to the power 11 dyne per centimeter square. Now Young's modulus y equal to fl upon a into delta l. So that delta l upon l equal to f upon a y. Now f upon cross sectional area a is equal to pi r square. So that f upon pi r square y. Now put the value of f, r and y. So that f equal to 9.8 into 10 to the power 7 and pi is equal to 22 upon 7 into r की वैल्यू है आपकी 0.125 होल स्क्वायर इंटू 12.5 इंटू 10 टू द पावर 11. तो 9.8 इंटू ये जो अपॉन के 7 है आपके ऊपर पहुंच जाएंगे. 9.8 इंटू 7 इंटू 10 टू द पावर 7, ये 10 टू द पावर 11 ऊपर जाएंगे तो 10 की पावर -11 हो जाएंगे. तो अपॉन में आएगा आपका 22 इंटू 0.125
इंटू 0.125 इंटू 12.5। अब हम क्या इसको सॉल्व कर लेंगे, तो डेल्टा एल अपॉन एल इक्वल टू 15.96 इंटू 10⁻⁴ आ जाएगा, या फिर हम इसे 0.001596 भी लिख सकते हैं। सो दैट द परसेंटेज इंक्रीज इन लेंथ इज इक्वल टू डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100% इक्वल टू 0.001596 इंटू 100 इक्वल टू 0.1596%, या फिर हम इसको 0.16% भी हम क्या लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 4 आइडेंटिकल cylindrical columns of steel support a big structure of mass 50,000 kg. The inner and outer radii of each column are 30 cm and 40 cm respectively. Assume the load distribution to the uniform. Calculate the compressional strain of each column. The Young's modulus of steel is 2 into 10⁻11 Pascal. Given m equal to 50,000 kg and R1 inner radius is equal to 30 cm, it means 0.30 meter, and outer radius is R2 equal to 40 cm, it means 0.4 meter, and y equal to 2 into 10⁻11 Pascal. So that the area of cross section of each column A equal to pi r2 square minus pi r1 square. Whole weight of the structure mg equal to 50,000 into 9.8 Newton. Compressional force on one column is equal to mg upon 4, it means 50,000 into 9.8 upon 4. तो इसका मतलब क्या है कि जो आपके 4 हमने कॉलम लगा रखे हैं, उन 4 कॉलम पर जो वेट आपका जो हैंग है, जो वेट सपोर्ट कर रहा है, वो वेट है आपका टोटल 50,000 kg वेट है। तो 50,000 kg आपका वेट है, तो ये वेट आपका यूनिफॉर्मली आपका डिस्ट्रीब्यूटेड है ईच कॉलम पर। तो एक कॉलम पर कितना फोर्स आएगा, वो फोर्स हम क्या करेंगे, टोटल फोर्स में हम 4 का डिवाइड करके हम क्या एक कॉलम पर कितना फोर्स आएगा वो हम निकाल सकते हैं। तो कंप्रेशनल फोर्स ऑन वन कॉलम हो जाएगा F इक्वल टू 50,000 इंटू 9.8 अपॉन 4। So that y is equal to F upon A upon compressional strain. Compressional strain is equal to F upon AY. Now put the value of F, A and Y. So that 50,000 into 9.8 upon 4 into pi r2 square minus r1 square into 2 into 10⁻11 ये y की वैल्यू हो जाएगी। Now multiplying 50,000 into 9.8, तो 4 ये आ जाएगा आपका 4,90,000 इंटू 10⁻11 अपॉन 4 इंटू 22 अपॉन 7 या 3.14 भी लिख सकते हैं। 0.4 का होल स्क्वायर माइनस 0.3 का होल स्क्वायर इंटू 2। ठीक है, 10 की पावर ये 11 है, ऊपर पहुंचा दिए, माइनस में हो जाएंगी। तो ये हो जाएगा आपका 4.9 इंटू 10⁻5 इंटू 10 की पावर माइनस 11 अपॉन 4 इंटू 22 अपॉन 7 इंटू 0.16.4 का स्क्वायर कर दिया है, 0.3 का स्क्वायर 0.09 इंटू, इसको सॉल्व करेंगे तो 4.9 इंटू 7 इंटू 10 की पावर माइनस 6 अपॉन 4 इंटू 22 इंटू 0.07 इंटू 2, या फिर 2.785 इंटू 10 की पावर माइनस 6। नेक्स्ट क्वेश्चन इज a copper wire of length 2.2 meter and a steel wire of length 1.6 meter, both of diameter 3 millimeter, are connected end to end. When stretched by a load, the net elongation
is found to be 0.7 millimeter. Obtain the load applied. Young's modulus of copper is 1.1 into 10 to the power 11 Newton per meter square, and Young's modulus of steel is 2 into 10 to the power 11 Newton per meter square. For the copper wire given, L1 is equal to 2.2 meter and radius is the half of the diameter, so that radius R1 equal to 3 upon 2. It means 1.5 millimeter. It means 1.5 into 10 to the power minus 3 meter, because 1 millimeter is equal to 10 to the power minus 3 meter, and Y1 is equal to 1.1 into 10 to the power 11 Newton per meter square. For the steel wire, L2 is equal to 1.6 meter and R2 is equal to 1.5 millimeter, या फिर 1.5 into 10 to the power minus 3 मीटर, एंड Y2 इज इक्वल टू 2 इंटू 10 टू द पावर 11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. और टोटल जो आपका एक्सटेंशन है, आपका टोटल कॉपर और स्टील वायर में जो आपका टोटल जो एक्सटेंशन हो रहा है वो 0.7 मिलीमीटर का हो रहा है. तो डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2 इक्वल टू हो जाएगा आपका 0.7 मिलीमीटर. ये इक्वेशन हमने फर्स्ट मान लिया है. फॉर्मूला हमें पता है y इज इक्वल टू होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन. ठीक है, तो y1 फॉर द कॉपर वायर, y1 इक्वल टू स्ट्रेस हो जाएगा आपका F अपॉन ए और स्ट्रेन हो जाएगा डेल्टा L1 अपॉन L1. तो यहाँ से हम क्या F अपॉन ए की वैल्यू हम क्या निकाल लेंगे, क्योंकि जो वायर है वायर पर हम क्या सेम फोर्स लगा रहे हैं. जो कंप्रेशनल जो फोर्स है आपका सेम है आपका, और एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया भी आपका सेम है. सो दैट F अपॉन ए इज इक्वल टू Y1 इंटू डेल्टा L1 अपॉन L1. ये इक्वेशन सेकेंड हो जाएगी. फॉर द स्टील वायर, Y2 इक्वल टू F अपॉन ए अपॉन डेल्टा L2 अपॉन L2. सो दैट F अपॉन ए इज इक्वल टू Y2 इंटू डेल्टा L2 अपॉन L2. ये इक्वेशन होगी थर्ड. अब देखिए सेकेंड और जो थर्ड इक्वेशन है दोनों F अपॉन ए के इक्वल है, तो हम क्या कंपैरिजन कर देंगे. तो फ्रॉम द इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड Y1 इंटू डेल्टा L1 अपॉन L1 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका Y2 इंटू डेल्टा L2 अपॉन L2. यहाँ से हम क्या है डेल्टा L1 अपॉन डेल्टा L2 की वैल्यू फाइंड कर लेंगे. तो डेल्टा L1 अपॉन डेल्टा L2 इक्वल टू L1 अपॉन L2 इंटू Y2 अपॉन Y1. अब हम क्या वैल्यू पुट कर देंगे L1 L2 Y2 Y1 की. तो 2.2 अपॉन 1.6 इंटू 2 इंटू 10 टू द पावर 11 अपॉन 1.1 इंटू 10 टू द पावर 11. 10 की पावर 11 से 10 की पावर 11 कैंसिल हो जाएंगे. 1.2 से 2.2 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा. 2 से आपका 1.6 0.8 टाइम्स आपका कैंसिल हो जाएगा. सो दैट डेल्टा L1 अपॉन L2 इज इक्वल टू 2 अपॉन 0.8 या फिर 20 अपॉन 8, या फिर हम इसको 5 अपॉन 2 भी लिख सकते हैं. 4 से कैंसिल कर दिया, 4 5 जा 20, 4 2 जा 8, या फिर 2.5, या डेल्टा L1 इक्वल टू 2.5 इंटू डेल्टा L2. सो दैट डेल्टा L1 माइनस इसको इधर लेके आएंगे तो 2.5 डेल्टा L2 इक्वल टू क्या आ जाएगा 0. इक्वेशन 4. अब हम क्या करेंगे इक्वेशन 4 को इक्वेशन 1 से हम क्या माइनस कर देंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 4 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट. तो इक्वेशन फर्स्ट है आपकी डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2 इक्वल टू 0.7, और जो आपका फोर्थ इक्वेशन है डेल्टा L1 माइनस 2.5 डेल्टा L2 इक्वल टू 0. जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज होएंगे, ये माइनस ये प्लस हो जाएगा. तो डेल्टा L1 से डेल्टा L1 आपका कैंसिल हो जाएगा. तो ये हो जाएंगे आपके 3.5 डेल्टा L2. सो दैट डेल्टा L2 इज इक्वल टू 0.7 अपॉन 3.5, या फिर डेल्टा L2 इक्वल टू 7 अपॉन 35. पॉइंट से पॉइंट हमने क्या हटा दिया है, तो 7 में 35 का डिवाइड करेंगे तो 0.2 टाइम्स ये क्या कैंसिल हो जाएगा. तो डेल्टा L2 इक्वल टू 0.2 मिलीमीटर. अब हम क्या है डेल्टा L2 की वैल्यू इक्वेशन 4 में हम रख देंगे, तो डेल्टा L1 की वैल्यू में फाइंड हो जाएगी. सो द डेल्टा L1 इक्वल टू 2.5 इंटू 0.2, या डेल्टा L1 इक्वल टू 0.5 मिलीमीटर. नाउ फ्रॉम द इक्वेशन फर्स्ट F इक्वल टू
y1 a इंटू डेल्टा L1 अपॉन L1, सो दैट y1 इंटू पाई R1 स्क्वेयर इंटू डेल्टा L1 अपॉन L1। y1 की वैल्यू 1.1 इंटू 10⁻11 और पाई की वैल्यू 3.14, आर की वैल्यू रख दी है 1.5 इंटू 10⁻³ का होल स्क्वेयर इंटू 0.5 इंटू 10⁻³ अपॉन 2.2। डेल्टा L1 की वैल्यू 0.5 थी मिलीमीटर, हमने क्या मीटर में यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया 10⁻³ का मल्टीप्लाई करके। अब हम क्या इसको सॉल्व कर लेंगे। तो ये तो 1.1 जो कहते हैं 3.14 इंटू 1.5 का स्क्वेयर किया तो 1.5 इंटू 1.5 इंटू 0.5, तो 10⁻11 और ये 3 2 जा 6, 10⁻6 और 10⁻³ अपॉन में बचा ये यहाँ पे 2.2। तो 11 से 2.2 को हम क्या 2 टाइम्स कैंसिल कर सकते हैं। ये ऊपर का हमने मल्टीप्लाई कर लिया है तो ये आ जाएगा 3.5325 अपॉन 2 इंटू 10⁻², क्योंकि 9 में से 6 गया तो वो सॉरी 6 और 3 आपका कितना होगा माइनस के 9, 11 में से -9 गया तो कितना बचा आपका 2। तो ये आ जाएगा आपका 1.766 इंटू 10⁻² न्यूटन या फिर 1.8 इंटू 10⁻² न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है द एवरेज डेप्थ ऑफ इंडियन ओशियन इज अबाउट 3000 मीटर, कैलकुलेट द fractional compression delta V upon V of water at the bottom of the ocean, given that the bulk modulus of water is 2.2 into 10⁻9 meter per square. Take G equal to 10 meter per second square. Now given H equal to 3000 meter and bulk modulus B equal to 2.2 into 10⁻9 Newton per meter square, so that pressure P equal to H rho G, so that 3000 इंटू 10⁻³ इंटू जी की वैल्यू आपकी 10 होती है। तो जो वाटर की जो डेंसिटी होती है ना वो वाटर की डेंसिटी होती है आपकी 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो याद रखेंगे ये हमें क्या ये क्वेश्चन में नहीं दे रखी तो हमें याद रखनी पड़ेगी कि द डेंसिटी ऑफ द वाटर इज इक्वल टू 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, so that 3 into 10⁻7 Newton per meter square. Now bulk modulus B is equal to P upon delta V upon V, so that compressional strain delta V upon V equal to P upon V, so that is equal to 3 into 10⁻10 upon 2.2 into 10⁻9। हम क्या 2.2 का इसमें डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका 1.36 इंटू 10⁻²। तो जो कंप्रेशनल स्ट्रेन है वो हो जाएगी आपकी 1.36 इंटू 10⁻²।